A very good morning to everyone. Now let's start a new chapter in e-commerce. So we'll be starting it up just a minute. I'll be sharing you with the screen share with some notes and which will be helpful for your study material. So please look down at the screen and you will, if you find it something important, you are always ready. You have to be ready for providing your questions, and if you have any problems, please ping me up. Okay, so we'll start now. So electronic payment system. Now we'll be starting up a new topic, that is electronic payment system. And electronic payment system, we have already learned in e-commerce that whatever we purchase, whatever the products we purchase, we are purchasing it online and we have to pay it online. Obviously, when we are paying it online, we should know all the procedures related to the paying methods or the paying system, what we call as electronic payment system. And now that is what we are going to discuss. So हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम शुरू करने वाले हैं. इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सिस्टम में जो हम लोगों ने पढ़ा था, या फिर हम लोगों ने जो ई कॉमर्स में पढ़ा है, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से हम लोग जो है पेमेंट सिस्टम करते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे. और ये देखेंगे कि जो पेमेंट सिस्टम के मेथड्स हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ है जिसको कि हम लोग फॉलो करना होता है. So these are the things which we have to learn in this chapter. So let us start. Now, the electronic payment system is what? Something electronic payment system is related to the payment system in which we are not dealing with any cash. So the cash is not involved, means the actual money or the actual we can say that the actual money means the actual paper money is not introduced, and what we are doing is we are doing paperless work in it, and the numbers of the transaction is of all the numbers. Numbers means what? Whatever the amount we have in our bank tells us that this much amount, means 1,000 rupees if you have in the bank, means it will tell you that there is some 1,000 rupees in your account. And from that 1,000 rupees, if you want to purchase some item that is of 300 rupees, then it will notify you that in now you have 700 left with your in your account, and 300 you have already purchase some product or anything else. That means the e-payment system does not include any cash. So here, if we'll go to the notes, it says what is e-payment. Now, what is e-payment means that an e-payment is a way of making transactions or paying for goods and services through an electronic medium. That means whatever we want to purchase, we can purchase it through the e-payment system without cash, and that transactions are being made by paying online transactions using internet,
for the products or goods and services which we want without the use of check and cash. It is also called as EPS or online payment system. EPS means electronic payment system and OPS means online payment system. For e-commerce, e-payment is convenient way of transaction where a customer can buy or sell its product and get the payment instantly. That means whatever the payment has to be made, it has to be made instantly with the purchase and sale of the products. The e-payments in e-commerce system has grown increasingly. आज के डेट में जो हमारे ई पेमेंट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा उभर करके आगे आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अभी कैश होता है वो हमेशा हमारे पास कैश अधिकतर नहीं होता है। जनरली हम लोग बैंक में ही उस कैश को रखते हैं और वो बैंक से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांजैक्शंस हम लोग कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो कैश ट्रांजैक्ट हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस है वो सेफ है और उसके जरिए हम लोग पेमेंट कहीं भी घर बैठे कर सकते हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ों को खरीदने के लिए उसके दुकान पर नहीं जाना पड़ता, किसी के शॉप पे नहीं जाना पड़ता, किसी के पर्टिकुलर पेइंग सर्विसेज स्टेशंस पे नहीं जाने पड़ते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं घर से ही कर लेते हैं। एग्जाम्पल, we can recharge our mobiles, we can recharge our TV cables or the receptions which we are having in televisions. We can also do electronic payments for anything which we purchase, like any product, like from a single paise to 1,000 lakhs rupees. Transactions can be made by e-payment system, though there are certain limitations, but yes, we can do so by sitting at home. So now we can check out that what are the methods of it. Now what we have to learn is e-payment methods. हम लोग देखेंगे कि e-payment methods हैं क्या क्या। तो e-payment methods में हम लोग क्या क्या पाएंगे। हम लोगों के पास क्रेडिट पेमेंट होते हैं, क्रेडिट पेमेंट सिस्टम, कैश पेमेंट सिस्टम भी है, उसी तरीके से इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स भी हैं। तो ये सब कई सारे पेमेंट मेथड्स हैं जिसको कि हम लोग अभी देखेंगे। ई पेमेंट मेथड्स, इट इज वन ऑफ द पॉपुलर पेमेंट फॉर्म्स, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। बिसाइड देम देयर आर also alternative payments methods such as bank transfer, e-wallet, smart card, etc. E-payment methods can be classified in two areas: credit payment system, cash payment system. तो दो तरीके के methods क्या क्या है? Credit payment systems and cash payment systems. Now credit payment system होता क्या है? Credit payment systems में आता है credit cards. सबसे पहले क्या आता है? क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स होता क्या है? जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं दे आर लाइक सम क्रेडिट्स और लोन गिवन बाय द बैंक फॉर अस टू हैव अ ट्रांजैक्शंस विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम। जनरली इट इज 50 days। 50 दिन के लिए आपको लोन मिलता है। उस लोन में आप के वो जो लोन अमाउंट है वो इस हिसाब से मिलता है कि आपकी जो सैलरी है वो किस तरीके की है। तो वो जो सैलरी है वो सारे सैलरी पे डिपेंड करता है कि आपका पेमेंट कितना होना चाहिए, सॉरी आपका क्रेडिट लिमिट कितना होना चाहिए। तो दीज आर ऑल डिपेंड अपॉन दैट what is the salary, per month salary for you. So it depends that how much your salary is, and the credit card is being given on the basis of your salary. Okay, now we'll check that what is e-wallet. E-wallet क्या होता है? It is a form of prepaid account that stores user financial data.
अभी आप कई बार देखते होंगे कि जो अमेजन वगैरह है उसमें क्या होता है कि उसमें आपका जो अमेजन वगैरह है उसमें ई वॉलेट सिस्टम है। ई वॉलेट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो पेमेंट है, पैसा है, उसमें हम लोग अकाउंट से ट्रांसफर कर लेते हैं और उसमें ई वॉलेट में हम लोग रख लेते हैं ताकि हम लोगों को कभी भी परचेज करने में आसानी हो। तो ई वॉलेट सिस्टम इज ऑल्सो अ गुड वे ऑफ transacting money in a fast manner, or we can say that we don't have to always contact bank for it. बैंक से एक बार ट्रांजैक्शन कर लिया, उसको रख लिया हमने, और वो ट्रांजैक्शंस करके और उसके बाद हमने क्या किया, उसको ट्रांजैक्शंस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग उसके ई वॉलेट से करते हैं। एक बार ट्रांजैक्शन करके हम लोगों ने अमेजन के ई वॉलेट सिस्टम में रख लिया और उसके बाद जो भी अमेजन से परचेज करना है, व्हाटएवर वी वांट टू परचेज, वी कैन परचेज थ्रू द ई वॉलेट सिस्टम। वैसा ही सिस्टम कई जगह पे है, जैसे आपका पेटीएम हो गया, पेफोन हो गया, और कई सारे आपके डिफरेंट साइट्स हैं, सभी में ऑलमोस्ट अब ई पेमेंट सिस्टम्स, सॉरी, ई वॉलेट सिस्टम्स आने लगे। नाउ समथिंग इज कॉल्ड स्मार्ट कार्ड। यहाँ पे आप देखिएगा स्मार्ट कार्ड की भी चीजें हैं। स्मार्ट कार्ड क्या होता है? स्मार्ट कार्ड, इट इज अ प्लास्टिक कार्ड विथ microprocessor that can be loaded with the funds to make transaction. Also known as chip card. Means what happens that there is a chip inside the plastic card. जैसा कि आप एटीएम देखते हो, एटीएम, तो उसी तरीके का आपका ये कार्ड भी होता है, स्मार्ट कार्ड भी होता है। तो स्मार्ट कार्ड जनरली क्या होता है कि ये क्या करता है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग उस स्मार्ट कार्ड में कुछ स्टिपुलेटेड अमाउंट रख लेते हैं, वो हमारा ही पैसा है। जबकि क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड में डिफरेंस होता है। क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड में डिफरेंस क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में बैंक हमें लोन देती है, जबकि स्मार्ट कार्ड हमारा अपना होता है और उसमें हमारे अपने ही पैसे उसमें डाल दिए जाते हैं। मतलब ये कि जैसा ई वॉलेट हर कंपनी का होता है, वैसा आपका ये अपना ई वॉलेट जैसा है, जिसके थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। वो एक उसमें हमने चिप डाल दिया और उसमें चिप में सारे डिटेल्स, बैंक डिटेल्स होते हैं, और वो पैसा आपके क्रेडिट कार्ड में, सॉरी, आपके स्मार्ट कार्ड में आ जाता है और उस स्मार्ट कार्ड से हम लोग परचेज करते रहते हैं। नेक्स्ट इज कैश पेमेंट सिस्टम। तो हम लोग के पास कैश पेमेंट सिस्टम भी है। कैश पेमेंट सिस्टम होता क्या है? तो कैश पेमेंट सिस्टम जनरली आपको लग रहा होगा ऐसा कि कैश अगर सर बोल रहे हैं तो डायरेक्टली जो है हम लोग अगर एटीएम से पैसे निकाल करके और जो उसका पेपर ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो हो सकता है। सही है, ये भी एक तरीका है, लेकिन जब हम लोग ई कॉमर्स की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पे, और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कैश पेमेंट सिस्टम होगा दैट विल बी रिलेटेड टू ई पेमेंट्स। तो उस ई पेमेंट्स को करने के लिए हम लोगों के पास जो भी चीजें उपलब्ध है उसकी बात हम लोग करेंगे, और ये क्या क्या हैं उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट, इसमें क्या होता है कि अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच अकाउंट होल्डर इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू कलेक्ट द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ many form many from his account from his account electronically to pay for goods or services. डायरेक्ट बेसिस कहने का मतलब है ये एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें कि अकाउंट होल्डर क्या करता है, वो बैंक को ही इंस्ट्रक्ट करता है कि आप इसमें से डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लोन ले लेते हैं,
तो लोन जो लेते हैं वो लोन तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन उसका जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट हम लोग बैंक को अलाउ कर देते हैं कि हमारे बैंक से, हमारे अकाउंट से हमेशा हर महीने पैसे ट्रांजैक्शन कर लिए जाएं। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है वो कुछ और नहीं है बल्कि डायरेक्ट डेबिट्स हैं। ये ई ट्रांजैक्शंस ही हैं लेकिन डायरेक्ट डेबिट्स हैं, और इसमें डायरेक्टली कैश का ट्रांजैक्शंस हो जाता है। नेक्स्ट इज ई चेक। ई चेक क्या होता है? तो अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ई चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं। ई चेक के माध्यम से पेमेंट करने का मतलब ये है कि आपका जो पेमेंट्स है वो डिजिटल वर्जन में होता है, जो कि एक चेक के माध्यम से होता है। हम लोग क्या करते हैं कि वी नीड टू पे, वी नीड टू राइट द नेम ऑफ द payee name on the check and we need to give to them with the sign. हम लोग के पास जो साइन होता है उस साइन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक चेक के माध्यम से उसको पैसे पेमेंट करते हैं, और वो चेक किस तरीके से आता है? वो चेक जो है आपके अकाउंट में चला जाता है, और वो चेक आपके आपके अकाउंट से पैसे डेबिट कर लिया जाता है। किसके अकाउंट में? जिसके नाम से आपने चेक बनाया है। तो दैट इज कॉल्ड ई चेक। और ये ई चेक भी जो है पेपरलेस है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली कैश, जो पेपर कैश है, जो कैश मॉनेटरी है आपके पास, पेपर मॉनेटरी है, वो जो है आप इसका डायरेक्टली ट्रांजैक्शन नहीं करते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर के माध्यम से आपका ट्रांजैक्शन होता है। नेक्स्ट इज ई कैश। ई कैश इज अ फॉर्म ऑफ ईपीएस वेयर certain amount of money is stored in the client's device and made accessible for online transactions. ई कैश क्या होता है? ई कैश कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं ई वॉलेट की तरह, जो कि किसी पर्टिकुलर बंदे के अकाउंट में डाल दिया जाता है और वो बंदा उसको जब चाहे तब यूज कर सकता है। ठीक है। स्टोर्ड वैल्यू कार्ड। स्टोर्ड वैल्यू कार्ड क्या होता है? अ कार्ड विथ certain amount of money that can be used to perform transaction in the user. कहने का मतलब जो इश्यूअर का स्टोर होता है, जो इश्यूअर का स्टोर होता है, इश्यूअर का स्टोर कहने का मतलब जो पैसे देने वाला है उसको इश्यूअर बोलते हैं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू कार्ड बना दिया जाता है जो कि एक फॉर्म का ट्रांजैक्शंस करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है? अब ये इम्पोर्टेंट इस तरीके से हैं कि आपका जो एडवांटेजेस है, ईपीएस आर मेड टू फैसिलिटेट द एक्सेप्टेंस ऑफ ई पेमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ ई पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। कहने का मतलब है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और उस एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो वो एडवांटेजेस में कई बार ऐसा होता है कि जो आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है दैट कैन बी वेरी मच पॉसिबल दैट इट इज maximum or 99.9% chances are that it is going to the right person and it has not having any problem. But 0.1% there can be such problem that it is from your account the money is debited and it is not credited to the users to the account in which you want to transfer. So these things are there.
we have to look for it. EPS became a must for online consumers to make the shopping and banking more convenient. Obviously, in today's life, it is very important to have a EPS, electronic payment transfer, so that we could not have any problems. Today, we are able to pay all the money. If you want, we can pay all the money through electronic payment system. Now, advantages are, there are different advantages. Now, the advantages are reaching mere clients all over the world. We can pay and purchase the product throughout the world. More effective and efficient transactions means whatever the transactions are being made, it has a lot of money can be transferred in a second. We don't have to carry the cash. So again, it is an advantage. It is convenient because we don't have to carry it. If you have a certain amount, like in lakhs or something, then what generally what happens that it is a pain for us to take out the cash, and then we should go to the different account, and then we should say we can pay in the different account, pay the cash in the different account. That means हम लोग एक जगह से कैश ले जाएंगे, कैश निकालेंगे, कैश को फिर दूसरी जगह ले जाएंगे, दूसरी जगह हम लोग लाइन में वेट करेंगे, और उसके बाद फिर वहां भी उसी कैश को डालेंगे. तो इट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस. तो वो प्रॉब्लम फेस हम लोग ना करें, इसलिए जो है बहुत सारे चीज को हम लोग ध्यान में रखते हैं, और वो क्या है, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, जो कि इट क्रिएट्स एन एडवांटेज, इट गिव्स एन एडवांटेज, it gives an advantage, so that we cannot have a problem out of it. Some people are disturbing, I think. Can you please switch off your phone or something which is there? खाली था के तरफ से आवाज आ रहा है. Okay. Now see that there are different convenience through which we have advantage of having electronic payment system. We have seen three advantages. Now, fourth advantage is that lower transaction cost. Lower transaction cost means what? Lower transaction cost means whatever the transaction which we are having, we can make the payment by paying very less, by paying very less amount, something like 2-3 rupees per transaction, or in some cases 11 to 12 rupees per transactions, but it is not more than 50 rupees. अब कुछ लोगों का पूछना है कि सर स्मार्ट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या होता है. नाउ स्मार्ट कार्ड और डायरेक्ट डेबिट में क्या अंतर है. स्मार्ट कार्ड बेसिकली आपका अपना बनवाया हुआ कार्ड है, जो कि बैंक के द्वारा ही बनता है, और वो कार्ड एक ऐसा कार्ड है जैसा कि आपका डेबिट कार्ड होता है, वैसा ही कार्ड होता है, जिसमें कि आप क्या करते हैं कि आप उस कार्ड में आप अपने ही पैसे डलवा लेते हैं, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, और उस कार्ड को लेकर के हम लोग कहीं भी जा करके और पेमेंट कर सकते हैं. तो ये आपका स्मार्ट कार्ड होता है. जबकि डायरेक्ट डेबिट में अंतर है.
वो डायरेक्ट डेबिट, जैसे कि हम लोग इस बेसिकली जब हम लोग डायरेक्ट डेबिट करते हैं तो वो हमारा इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू डायरेक्ट डेबिट होता है, या फिर डायरेक्ट डेबिट में क्या होता है कि हम लोगों के अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट होता है। जबकि स्मार्ट कार्ड आपका अपना एक अलग अकाउंट क्रिएट हो जाता है जो कि आपके पास हमेशा होता है, और उस कार्ड के थ्रू आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। आज के डेट में जो आपका डेबिट कार्ड है वो भी एक स्मार्ट कार्ड ही है, लेकिन एक स्मार्ट कार्ड पहले आता था जिसमें कि क्या होता था कि आपके नाम से ही एक अलग कार्ड बन जाता था, और उस कार्ड में आपके सारे पैसे, उसमें अगर आप चाहें जितना चाहें, मान लिया 20,000 रुपए चाहें उसमें ट्रांसफर करना तो 20,000 डाल दिया, 2,000 चाहें 2,000 डाल दिया, और उसी को आप लोग यूज कर सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस। अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए हैं लेकिन आप चाहें तो आप अपने स्मार्ट कार्ड में सिर्फ 2,000 रुपए ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जबकि हमारा जो ट्रांजैक्शंस है डेबिट कार्ड में वो डायरेक्ट अकाउंट से होता है, और अकाउंट में आपके उसी अकाउंट से जिसमें कि आपके सारे पैसे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। और कुछ ऐसे भी ट्रांसफर हम लोग करते हैं जिसमें कि हम लोगों को डायरेक्टली जो है हम लोग चाहते हैं कि अकाउंट से ही ट्रांसफर हो जाए। तो नाउ इट इज वेरी सिक्योर, सो देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट कार्ड एंड द अदर डेबिट कार्ड्स। कहने का मतलब ये है कि जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं उसको हम लोग अगर मान लिया हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए है और हम चाहते हैं कि 20,000 रुपए ही हम उसका यूज करें, तो 20,000 का अलग हमने एक स्मार्ट कार्ड बना लिया और उसी से हम लोग परचेज करते रहते हैं। जब खत्म हुआ तो फिर 20,000 रुपए उसमें डाल दिया। तो उससे क्या होता है कि अगर मान लिया कि आपका स्मार्ट कार्ड कहीं खो भी गया, दिक्कत नहीं है, आप जो है वो स्मार्ट कार्ड को एक नया भी बनवा सकते हैं, उसको डीएक्टिवेट भी करा, सारे फीचर्स जो आपके डेबिट कार्ड में वो सारे फीचर्स उसमें भी आ जाते हैं। बैंक के द्वारा ही स्मार्ट कार्ड बनता है, तो कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम उसमें नहीं है, इट इज सेफर। तो ये हम लोग पहले यूज करते थे। अभी के डेट में क्या हुआ है कि थोड़ा हम लोग और बेहतर यूज करते हैं, जो स्मार्ट कार्ड जो आपका डेबिट कार्ड है उसी को एज अ स्मार्ट कार्ड भी हम लोग यूज करते हैं। अब आगे देखिएगा कि जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं, जो कन्वीनियंस हमारे पास और भी ट्रांजैक्शन सिस्टम हैं, वो ट्रांजैक्शन सिस्टम क्या है? वो ट्रांजैक्शन सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो कई सारे ई कॉमर्स के जो फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए कुछ ऐसी चीजें लगाई गई हैं कि हम लोगों को दिक्कत ज्यादा ना हो, जैसे कि पेमेंट गेटवे सिस्टम। अभी क्या हुआ है कि हमारे जो कुछ पेमेंट गेटवे सिस्टम्स बनाए गए हैं जिसमें क्या होता है कि कई सारे ट्रांजैक्शंस कई बैंकों के द्वारा किए जाते हैं, और उन बैंकों को ऑथेंटिसिटी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो ऑथेंटिसिटी इसलिए दी गई है ताकि वो सारे पेमेंट्स जो हो रहे हैं उनके सारा लेखा जोखा को मेंटेन कर सके। अगर एक बैंक से 50 पेमेंट पर डे हो रहा है तो उन 50 पेमेंट को का वो डिटेल्स अपने पास रख सकें, पेमेंट किससे आया है, पेमेंट किसको गया है, पेमेंट कितना आया है, कितना गया है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, वो सब कुछ वे मेंटेन करते हैं। तो ये आपका ट्रांजैक्शंस है जो कि हम लोगों के द्वारा किया जाता है पेमेंट गेटवे के थ्रू। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट प्रोवाइडर ऑफर हाईली इफेक्टिव सिक्योरिटी एंड एंटी फ्रॉड टूल्स। पेमेंट गेटवे जो है आपका पैसा सेफ रहे उसके लिए जनरली किया जाता है, और हम लोग उसी के लिए जो है काफी कुछ कर पाए। अभी देखिए जो ये पेमेंट गेटवे है उसमें कई सारे बैंक्स को इंक्लूड किया जाता है। कई बार जो है हमारे डिफरेंट ऑथराइज्ड कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिसको कि ऑथराइज किया जाता है ताकि वे लोग उस पेमेंट सिस्टम में आ सकें और पेमेंट का लेखा जोखा रख सकें। आगे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और ये डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ई कॉमर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और वो डिसएडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स के फ्रॉड होने। जो ई कॉमर्स फ्रॉडिंग जो चलती है, फ्रॉडिंग करने का मतलब ये है
कुछ ऐसे फ्रॉड्स हो चुके हैं जो कि दिखाते तो हैं कि ट्रांजैक्शन सही है, लेकिन एक्चुअली उस पर्सन, उस पर्टिकुलर बंदे के द्वारा नहीं किए जाते हैं जिसके द्वारा होने चाहिए। तो ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। आज के डेट में करीबन 30% पर ईयर हम लोगों के पास ऐसे फ्रॉड केसेस आते हैं, जिसमें कि कस्टमर ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हमने तो पैसा भेजा ही नहीं, हमने पैसा ट्रांसफर किया ही नहीं, लेकिन ट्रांसफर हो जाएगा। उसमें भी देखा गया है कि जो मैक्सिमम ये काम है वो फैमिली मेंबर्स के द्वारा किए जा रहे हैं, या फिर जो फ्रेंड सर्किल में हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। किसी न किसी के द्वारा जो है आपका आईडी पासवर्ड जान लिया जाता है, आप लोग किसी न किसी तरीके से पिन नंबर्स बता देते हैं, जिसकी वजह से पैसे अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं, और आप ही के जो क्लोज रिश्तेदार हैं उन वो भी ऐसा कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस में। लेकिन कुछ ऐसे भी चांसेस हैं जहाँ की फ्रॉडिज्म जो है वो किसी पर्टिकुलर तीसरे बंदे के द्वारा, जिसको आप जानते भी नहीं हैं, और वो हैकिंग सिस्टम से वो वैसा कर सकते हैं। वो पॉसिबल है, और लेकिन उस चीज को पॉसिबल करने में you have to be you should have a very good concept of networking and programming। उसमें जो है कंप्यूटर साइंस फील्ड में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने सही दिमाग का यूटिलाइजेशन जो है कुछ गड़बड़ जगह करते हैं, जिसके कारण कई सारे फ्रॉड केसेस हो रहे हैं। लैक ऑफ एनोनिमिटी एंड एडुकेशन। कई बार हम लोगों के अच्छे एजुकेशन नहीं होने के कारण भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आपके दादाजी लोग हैं, उन लोगों को ये पता नहीं है कि एटीएम से कैसे पैसे निकाले जाते हैं। अब तो बहुत लोग एजुकेट हो चुके हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी हैं। तो उनकी जगह पे कोई और फैमिली मेंबर्स में से पैसे निकालने जाते हैं, तो उसकी वजह से भी फ्रॉडेंस होते हैं। निकालना है 5,000, निकाल लिया 10,000। तो इस तरीके के भी केसेस हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनका अकाउंट हैंडल किया जा रहा है उनके घर के लोगों के द्वारा। ये सब केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। द नीड ऑफ इंटरनेट एक्सेस इज मस्ट सो एज टू हैव अ ट्रांजैक्शन। अब ये जो डिसएडवांटेजेस में ये है कि आपका जो इंटरनेट एक्सेस है वो एक सबसे जरूरी माध्यम है आपके पैसे का ट्रांजैक्ट होने का। उससे होता क्या है कि जो ट्रांजैक्शंस है वो आपका इंटरनेट के माध्यम से होता ही है, और इंटरनेट के माध्यम में देयर आर सर्टेन अपोनेंट्स वी हु आर वेटिंग फॉर यू टू डिस्टर्ब यू एंड टू गेट योर पिन नंबर्स। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फ्रॉड्स लोग बैठे होते हैं, और वो लोग इस आशा में बैठे होते हैं कि कब आप पिन नंबर डालें और उसको वो डिसाइफर करके रीड कर सकें, तो इस पासवर्ड्स को रीड कर सकें। कई सारे इसीलिए जो है अभी जो ट्रांजैक्शंस है उसको काफ़ी सिक्योर किया गया है, और ओटीपी जो है वो भेजा जाता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पासवर्ड्स भेजे जाते हैं ताकि आप लोगों का ऑथेंटिसिटी मेंटेन्ड रहे। देयर आर सर्टेन अदर पेमेंट्स, जैसे अभी एटीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं। एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, थ्रू विच वी कैन हैव कैश। हमारे पास एक कार्ड होता है, और उस कार्ड के जरिए हम लोग एटीएम मशीन के से पैसे निकाल सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हम लोग बहुत सारे भीड़ भाड़ से बच जाते हैं। और ऐसे कई सारे एटीएम्स मौजूद हैं जिसके कारण जो बैंकों में भीड़ है वो काफ़ी कम हो गई है। ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, हम लोग हमेशा देखते आए हैं, तो इसको जो है आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है, financial device that enables customer of financial institutions to perform financial transactions such as cash withdrawal, deposits, transfer funds or obtaining account information। ये एटीएम से कई सारे हम लोग काम कर सकते हैं। केवल कैश विड्रॉवल ही नहीं होता है, बल्कि कैश डिपॉजिट भी होता है, ट्रांसफर फंड भी होता है।
और कई सारे इस तरीके के आप अभी तो देखा गया है कि आपके पासबुक्स वगैरह सबके लिए जो है मशीन्स आ गए हैं पासबुक अपडेट करने के लिए भी. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स which are very helpful in NTM electronic machines. Okay. नेक्स्ट है POS, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं. पॉइंट ऑफ अ स्केल है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो क्योंकि हमारा 40 मिनट्स जो है दैट इज गोइंग टू बी ओवर वेरी सून. सो आई थिंक आई एम एबल टू एक्सप्लेन अ बिट ऑफ इट and you must not have a lot of problems. Whatever the problems are there, you can always send me in the chat sections, or you can always send me on my WhatsApp number. So thank you for attending my classes. I am stopping the sharing. Hope you have understood. Thank you, sir. Okay, thank you.